So welcome everyone in this journey of Gargantuan Personality Advantage. As we know that Gargantuan Personality Advantage means to reach the apex, to reach at some point where there is no competition. You are alone and you can go till you want. Many people, they want to reach this point, but very few people they can. Why some people they can and why some people they can't? Some people they can because they follow certain values in their life. Values like total quality people, like, integrity, humility, positiveness, empathy. These are the values, even the dignity. These are the values which some people they follow, and that is the reason they reach. And today we are talking about a very important topic, and the topic name is Seven TSR. 7 TSR. We call it 7 truths of sowing and reaping. 7 truths of sowing and reaping. I think last few days we were talking about this topic, that as you sow, so shall you reap. You people have given your inputs on this. So I really want to know from everyone. Sharup, what do you think? If we sow, then will we definitely, get something? Yeah, sir, obviously, if we sow, whatever we sow, if we are in the positive side, whether in the negative side, whatever we sow, we will get that result. Okay. We will get that result. So, in positive, if we build something positive right now, so at some point of time, we will get the positive things. Maybe for some people it's very sooner, and some people maybe it get little much delayed, but it will happen, and we will get that positive. Okay. Next question to Debashi is that, as per Sharup, when we sow, we get the reaping benefits. But I've seen many people, they are really working hard, but still they are not getting what they deserve. Why does it happen? Good evening, sir. Good evening, everybody. Yeah. I'm also searching the answer of this because I'm the burning example of this thing, what you Okay. have just quoted now. So I So, can put some light on this. Okay, now we will go through the light after some time. And after that, we'll have the, general talk. Then we can have more, insight on this. So Shoma, what do you think? What you sow, you get the reaping effect? So, Not so convinced. no. So, Not so convinced on that. Manushi, what do you feel? What we sow, we get the reaping benefit? Yes, sir, I believe that if I did, we did bad things in future past, it will get the bad things in the future, and if we good things in the past, definitely good things in the future also. So Okay. I believe, I believe. How much percent? 0% or 100%? Today I am believing 100% because my journey. Really, is what's the meaning of my journey is also same. Okay. I definitely I 100% believe. Okay, Sunita ji, what do you think? जो हम लोग करते हैं वो हमें मिलता है, मतलब जो हम बोते हैं वो हमें मिलता है, ऐसा कहा जाता है। definitely, sir. तो आप बिलीव करते हो इसको? Yes, sir. Definitely. इसका जो हम मतलब करते है, हैं। इसका मतलब है किसी को अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी-कभी होता है कि हम 100% नहीं दे पाते हैं, या फिर कहीं भी कोई कुछ
ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें डाइवर्ट कर देते हैं उस जगह तक पहुंचने में। तो आपका बोलने का मतलब आप नहीं भी करेंगे तो भी मिलेगा? नो सर, डेफिनेटली पूरा 100% नहीं देना पड़ेगा। अब होना ना पूरा एक अपने लक पे भी डिपेंड करता है सर। अच्छा, मतलब लकी होंगे तो मिलेगा, नहीं लकी होंगे तो नहीं मिलेगा। ओके, जेबा जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि डू वी रियली गेट व्हेन वी पुट सम एफर्ट ऑन एनीथिंग? Yes, sir, definitely. सो मैंने इन योर लाइफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट दैट आपने कर्म किया और फल मिला उसका? Yes, sir, definitely. I have experience. ओके, एंड आपको लगता है ये हमेशा होता है? सर हमेशा नहीं होता है, लक भी इसमें मतलब मैटर करता है 50%। अच्छा, लक भी 50% मैटर करता है। हम्म। ओके ओके, अच्छा आप बताइए कौन विमला सर? जी, आई एम वेटिंग फॉर यू। विमला जी, Oh, good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग जी। What is question? क्वेश्चन इज, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा ये होता है क्या? Definitely होता है। या थोड़ा लकी होने से होगा? तकदीर और तदबीर दोनों साथ देती है तब होता है। यस सर। अच्छा, ओके। कर्म, पर ये कर्म करना हमारा काम है, फल तो मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा मालूम नहीं। तो अगर आपको पता है, अब आप मालूम नहीं है, तो आप कैसे कर्म करोगे? आप श्योर होगे तभी तो कर्म करोगे। ओके, I'll come to you, Bimla ji. Chandan, what do you think? If we really do something, means if we really give our effort, do we get the reaping effect? Yes, sir. Debashish, you were telling something. Yeah, actually, you have asked me something different. Yeah. So sometimes what happens, at least what I have experienced in my life, that I'm sharing only, that really, to some extent, I give my utmost endeavor. In spite of that, I didn't get the desired result. Maybe I'm something lacking in me. Something is lacking in me. I suppose, I think at this point of life, I think maybe my few steps were wrong, definitely. But in spite of that, maybe I have something is lacking in me, so that I'll have to rectify myself, and then I'll have to work on it. Yeah. That's the thing. Okay, guys. So right now we will be doing a topic which is very close to my heart, and okay, let's see. So it's called 7 TSR, 7 Truth of Sowing and Reaping. Guys, if you believe in luck, if you are giving 50% to luck factor, somewhere 50%. लक फैक्टर मैटर करता है सर। So, but if you are really studying 7 TSR, then I will say that you have to believe in 7 TSR. If you believe in luck, even if it is 1%, it means somewhere you are not believing 100% to what you are sowing and reaping. I just want to tell you one very small story. Couldn't follow you. Yes, Devashish. I couldn't follow you. You couldn't follow me means you are not aligned with what I said. Yeah. Okay, means you want to say that luck is there. Definitely, a little bit of luck is there, sir. Definitely, luck factor is there. I don't know the percentage, but Okay. luck factor is there, which I believe. Okay. Yeah, Sharup. Working hard. These are things. Okay, you'll have to work hard. Everything is, but definitely, maybe it's a 1%, 2%, whatever it is. Luck factor is there. The luck comes to whom?
Luck comes to the deserving, or If you remember, luck comes to everyone? if you remember Maradona's goal, the hand of God, that is luck, nothing else. That's a Okay. very good example of luck, hand of God. Luck comes to whom? Luck comes Luck to that comes person to only who works everyone. hard. My Who works. No. my Luck does not. question. Luck does Yeah. not. Luck does. Before you ask, let me finish. Okay. Sorry to interrupt you. Luck does not comes to everyone. Luck comes to that person only who tries hard, and who tries hard. Who tries That 100%? person only. Who tries tries 100%? Yes sir, I'll have to keep जो my मेहनत करते हैं 100%. उसी के I'll पास have to लक keep Then आता why है. we are, 100%. if you are telling those who try, they only become lucky, then why we are If I talking just sit about idle luck? at the home, and I'll wait for a lottery to win lakhs of rupees, so it won't work. Yeah. So ultimately I'll have हम to work यही hard. बोलना चाहते हैं, कि अपना काम करना है, Yes. उसके बाद लक जो भी आएगा वो उसके बाद आएगा. तो अपने काम को मैं 50% क्यों बोल रहा हूँ, अपने काम को मैं 100% क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मेरा बात ये है, why I'm नहीं not सर, considering that I have to give my 100%. काम तो हम लोग Exactly. 100% ही करते हैं सर, वो होना नहीं, तो ना हम होना लोग उसका तो बोल रिजल्ट रहे हैं कि 50% हमें काम करना है, 50% लक आएगा. नहीं, सर, 100% काम नहीं है. करना है सर, हाँ 50% luck तो नहीं 100% काम करना है. cannot be. Okay, let's go ahead. I think we'll have a lot of things to know the more we go ahead. Just a minute. So, fine. 7 TSR, we call it 7 truths of sowing and reaping. There are 7 truths, which governs our life. We know that what we sow, we reap. But many people, they face that they are not getting the positive outcome even after they are sowing for years and years. So this concept, we call it 7 TSR, says that whenever we are sowing, we need to consider 7 truths. ऐसी 7 सच्चाई है जो सोइंग एंड रीपिंग से रिलेटेड है. अगर हम उस 7 ट्रुथ्स को बिलीव करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे, then we will definitely be successful in our life. आइए देखते हैं वो 7 ट्रुथ्स क्या हैं. Why some people do not reap so good? Why some people, they do not reap so good? Why? I'm asking you guys. Does the answer you suggest that they are not lucky? That is the reason? Because they are not good idea. In short, you want to say they are not sowing. They are not working hard on their goals. उनको लग रहा है कि वो अपना पूरा दे रहे हैं. Try to understand. मुझे लग रहा है कि मैं अपना पूरा दे रहा हूं, लेकिन जब वो चीज नहीं मिल रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि I am not lucky. हम लोग ऐसा क्यों? Yeah, Devashish. Lacking somewhere. Yes. No, but most of the people, they are putting effort, and when they are not getting, they are thinking they are not lucky. Very few people, I think maybe 5% of people, they think that there is something lacking. I need to be more better. I need to be better and better. But try to understand, my dear friend, अगर हम थोड़ा भी अगर परसेंटेज लक को देंगे तो हम अपने ऊपर चेंज नहीं करेंगे. ऐसे बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं आई एम गिविंग माई बेस्ट बट आई नो दैट लक इज नॉट सपोर्टिंग और माई लक विल नॉट सपोर्ट. मुझे पता है मुझे नहीं मिलेगा. आई नो दैट आई विल नॉट बी गेटिंग इट. आप लक और वर्क को एक साथ कैसे ले सकते हो? लक को तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं. आप तो उसको तब कंसिडर करोगे ना कि जब आपके वो हाथ में है. आपके हाथ में नहीं है. व्हाई यू आर कंसिडरिंग 50% ऑफ योर importance you are giving to luck? Guys, either you believe in you or you don't believe in you. And people who believe, they believe in themselves, and if they don't get anything, they work on themselves. Again they try. When they again don't get, again they work on themselves. Again they try.
now you will tell that okay, after 100 tiles sir, if that person doesn't get, then, और सोचिए सर वो मर गया, तो क्या बोलेंगे, वो तो पूरा अपना एफर्ट दिया, जब तक दे रहा था ठीक है, अब तो वो मर गया, अब क्या बोलेंगे, वो लकी था या नहीं था? मैं तो ये बोलूंगा कि गाइस, अगर मैं अपने रास्ते आगे जा रहा हूं, मैं फेल हो रहा हूं, फिर कर रहा हूं, फेल हो रहा हूं, फिर मेहनत कर रहा हूं, करते करते सपोज मुझे वो नहीं मिला और उसके पहले ही मैं मर गया, इमेजिन, उसके पहले ही मर गया, आपको क्या लगता है इसका मतलब है कि मेरा लक सपोर्ट नहीं किया? गाइस, जब मेरी डेड बॉडी पड़ी रहेगी और लोग मेरे डेड बॉडी को देख के बोलेंगे ना कि ये जिंदा रहता ना तो कुछ कर बैठता या कुछ कर डालता या वो जरूर आगे जाता, दिस इज सक्सेस, दिस इज द परसेप्शन। मे बी मुझे वो लाइफ में मिला नहीं जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे हर वो चीज मिला, मतलब मुझे अगर मिल जाता तो क्या होता, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते, तो अगर मैं वो चीज मुझे मिला नहीं, मैं सपोज उससे पहले ही मर गया, लेकिन लोग फिर भी मेरे बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर ये जिंदा रहता तो ये करता, ये करता, ये करता, इसका मतलब क्या है कि हर इंसान को लगता है कि मैं डिजर्विंग था उस चीज को पाने के लिए। सो क्या मुझे नहीं मिला? कहते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस जी रहते तो हो सकता था कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते। सो आपको क्या लगता है, वो लकी नहीं थे, वो नहीं बने, वो अचीव नहीं किए? बॉस, ही वॉज द डिजर्विंग पर्सन, वो डिजर्व करते थे, मैं नहीं बोलूंगा वो अनलकी थे। दे हैव क्रिएटेड सम इंप्रेशन इन आवर माइंड कि बॉस वो आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, अगर वो होते तो शायद देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। यही तो सक्सेस है उनका। सो व्हाट वो प्रधानमंत्री नहीं बने, आज हमको लगता है कि वो डिजर्विंग थे। वाई हम लोग ऐसा क्यों लगता है कि हाथ में नहीं मिला तो सक्सेस नहीं है, हाथ में मिलता तो सक्सेस है? सक्सेस इज अ रियलाइजेशन that yes, I deserve something, so what, I don't have that. Success is the realization that I deserve it, and that's the only thing. वो मेरे कंट्रोल में क्या था? मेरे कंट्रोल में था कि मैं इसके लिए अपने को डिजर्विंग बनाऊं। आज मैं डिजर्विंग हूं। हो सकता है कि मैं जो बनना चाहता हूं वो नहीं बना, लेकिन मेरे पास हर वो क्वालिटी है जो इंसान जो लकी है आपके हिसाब से, उसके पास जो है मेरे पास उससे ज्यादा है। सिर्फ लक से नहीं होगा। आज कोई लकी है, वो आगे बढ़ गया, और अगर उसके पास वो क्षमता, वो स्किल नहीं होगा ना, तो 10 लोग बोलेंगे देखो आज वो इतने अच्छे जगह में है, लेकिन उसके दिमाग पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, वो डिजर्व नहीं करता है। ऐसे बहुत लोग आए, प्रधानमंत्री बने, लेकिन सबने डिजर्व नहीं किया, और कुछ लोग डिजर्व किए लेकिन शायद प्रधानमंत्री नहीं बने। उससे क्या फर्क पड़ता है? आई डिजर्व इट, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, आई कैन ओनली कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, एंड एज पर मी आई डिजर्व इट। सो आप ये मत देखो कि आपको सक्सेस मिल रहा है कि नहीं, आप फर्स्ट हो रहे हो कि नहीं। आज अगर मेरी बेटी फर्स्ट नहीं होती है क्लास में, लेकिन जो फर्स्ट हो रहा है उससे ज्यादा मेरी बेटी को पता है, आई एम डन, आई एम मोस्ट हैप्पियर। वाई हम हमेशा एक पोजीशन को सक्सेस क्यों मानते हैं? हम अपने अंदर वो वैल्यूज को सक्सेसफुल क्यों नहीं मानते? बात ये नहीं है कि ये गार्गेंचुअन एडवांटेज को जानने के बाद आप उस लेवल में रहोगे कि नहीं। बात यह है कि आप जो भी चीज इस गार्गेंचुअन पर्सनालिटी एडवांटेज में पढ़ रहे हो, वो सारे अपने अंदर डाल रहे हो कि नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। Are you all do you all know about Dashrath Majhi? Yes, sir. Yes, Yes, sir. I know. Yeah, Devashish, Dashrath Majhi. Yes, sir. Dashrath Majhi was breaking the mountain. Mountain. Ultimately उन्होंने माउंटेन ब्रेक किया और वहां से रास्ता निकाल लिया। Yes. बात ये है कि अगर बाई चांस अगर रास्ता नहीं निकलता तो क्या होता? तो क्या हम ये बोलते कि he was not successful? यार, he contributed his more than 20 years into breaking that mountain. He deserved it, and people who deserve it, they achieve it. हमें काबिल बनना है, हमें वो मिलेगा कि नहीं वो हमारे हाथ में कभी था ही नहीं।
we can only say that whether we are deserving or not deserving. लक मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? क्योंकि अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा ना, अगर बाई चांस मैं फेल हो गया और बार बार फेल हुआ ना, तो हमेशा नेक्स्ट टाइम मुझे जब कोई पूछेगा ना, मैं बोलूंगा आई डिड माई बेस्ट, लेकिन शायद मैं लकी नहीं था. बहुत लोग बोलेंगे लेकिन सोचेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि मैं अगर बोलूंगा कि मैं लक नहीं था तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो दिमाग में रखेंगे कि आई एम नॉट लकी, लेकिन वो लोगों को बोलेंगे हाँ मिला नहीं. बहुत लोग बोलेंगे मेरे भाग्य में नहीं था. अरे यार भाग्य में नहीं था, व्हाई वी आर टेलिंग ऑल दीज थिंग? आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. मिलेगा एक ना एक दिन, जरूर मिलेगा, मैं अभी भी काम कर रहा हूं उस पे. यू आर नेवर अ लूजर अंटिल यू क्विट. आपको नहीं मिला, अरे यार तो आप तो जिंदा हो, तो नहीं मिला क्यों बोल रहे हो? बोलो अभी तक नहीं मिला. क्योंकि अगर आप ये बोलोगे कि मुझे अभी तक नहीं मिला, यू आर ऑलरेडी बिकमिंग अ लूजर. यू नो, अगर आप बोलोगे कि मेरे को नहीं मिला, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि अभी तक नहीं मिला, मिल जाएगा, आई एम वर्किंग ऑन इट, इट मीन्स यू आर नॉट अ लूजर, यू आर स्टिल फाइटर. और एक फाइटर लूजर नहीं होता है जब तक वो ये ना कर दे, तय ना कर दे कि मैं हार चुका हूं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, कि आप एक साथ लक और वर्क को साथ में नहीं ले सकते. आई नो कि बचपन से हम ये सब दोनों को साथ में लेके बड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर आप लक को लोगे ना तो अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे. So guys, why some people they do not reap so good? You can only reap what you sown. What have you sown? आपको वही मिलेगा जो आपने बोया है, आपने सो किया है. इसका मतलब है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब मैंने उस पे कुछ काम नहीं किया है. I have to work on it. Simple. मैं ये क्यों कर रहा हूं? शायद मैं उतना लकी नहीं हूं. मैं लक को बीच में लाऊंगा ही नहीं जब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, अपने सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं. सब लोग काफी सीरियस हो गए. See, I am telling what I believe in it. Seriously. I am not telling कि आप अपने को चेंज करो. बात है कि आप अगर लक को रखोगे तो हमेशा अपने आप को डिसअपॉइंटेड सोचोगे, यार मैं लकी नहीं हूं, मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा हूं. इट विल मेक यू फील ऑलवेज डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी. लेकिन अगर मैं लक को बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपना काम करूंगा तो एक ना एक दिन वो आएगा. बट आई डोंट बिलीव इन लक. लक बिलीव्स मी. लक बिलीव्स दैट यस दिस पर्सन डिजर्विंग, लक कम्स टू मी. ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? ऐसा सोचने से ना मैं खुश रहता हूं. अगर मुझे नहीं भी मिलता है, मुझे एनर्जी मिलता है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेकिन अगर मैं बार बार ये बोलूंगा ना कि नहीं यार लक भी होता है, लक भी होता है, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक क्राइटेरिया में लक को घुसा रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है. आप ऐसी चीज को हाथ में क्यों ले रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है? एक बार बोल रहे हो कि लक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ऊपर से बोल रहे हो लक मेरे हाथ में नहीं है. ये दोनों मैच नहीं करता. वही चीज आपके ऊपर लागू होगा जो आपके हाथ में है. Okay, let's go ahead guys. So if you are not reaping, that means you can, you are not sowing. अगर आप सो करोगे तभी आप रीप करोगे. तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं 7 truths of sowing and reaping. ये 7 truths जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. Are you guys there? आप लोग सब हो साथ में? Yes, हाँ sir. जी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. द फर्स्ट ट्रुथ, जो सबसे पहला ट्रुथ है, वो है नेगेटिव. नेगेटिव. ये ट्रुथ क्या बोलता है? ये ट्रुथ बोलता है कि अगर आप कुछ नेगेटिव बोओगे, कुछ नेगेटिव बोओगे, तो आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव होगा. बहुत लोग हैं जो नेगेटिव बोते हैं या नेगेटिव कर्म करते हैं, नेगेटिव करते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं, वो लोग को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा. एज पर द ट्रुथ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, अगर आप कुछ नेगेटिव बो रहे हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा. इसमें कोई दो राहें नहीं है. आप लोग दशरथ माझी के बारे में जानते हो? Yes, sir. उन्होंने अच्छा बोया इसलिए अच्छा पाया. लेकिन अगर आपने मूवी को अच्छे से देखा होगा, जब उसने बोना स्टार्ट किया था, मतलब माउंटेन को
काटना स्टार्ट किया था, उस वक्त वो माउंटेन को तोड़ने से रिलेटेड वो पॉजिटिव सोच नहीं रखा था। उस समय वो बदले की सोच में तोड़ रहा था। यस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो 20 साल तक बदले के सोच में नहीं तोड़ रहा था उसको, लेकिन पहले कुछ टाइम पे जब उसकी वाइफ का डेथ हुआ, राइट, तब वो एक नेगेटिव माइंडसेट से उस माउंटेन को तोड़ रहा था। ही वॉज पुटिंग हिज नेगेटिव एफर्ट, दैट वॉज नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव तो उसने बाद में स्टार्ट किया। फर्स्ट जब वो नेगेटिवली गुस्से से तोड़ रहा था, मार रहा था माउंटेन को, तब उसको कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिला था। कुछ याद है आपको, अगर आपने मूवी देखा होगा? क्या हुआ था? वो जब गुस्से से तोड़ रहा था तो उसको कुछ इफेक्ट हुआ था, उसका एक रिजल्ट उसको मिला था। क्या रिजल्ट था? किसी को याद है वो? ओके, चलिए, याद नहीं आपको, मैं दिखाता हूं कि क्या हुआ था। चलिए आइए देखिए। आई होप यू कैन सी द वीडियो। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा चीज लगते तोरा खेल खत्म। तू देखते माता। Guys, have you seen the video? यस सर। Yes, sir. We have seen, this time when he started with a negative emotion, he was basically in the mindset of taking a revenge, and revenge is a negative thing, a negative action. So when he was putting negative, now you see, तोड़ना तो दूर, उसने पहाड़ में आग लगा दिया, जिससे उसका क्या खराब हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों का खराब हो सकता था, डेंजर हो सकता था। जब आप एक नेगेटिव माइंडसेट से कोई काम को करोगे तो वो तो एक नेगेटिव बोना ही हुआ। सो क्या हुआ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप गुस्से में हो तो आपके पास कंट्रोल नहीं है, ये सब कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो तो आपको नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें कोई दो राहें नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड? यस सर। Yes, Yes, sir. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव, बहुत लोग, ऐसा नहीं कि आप कोई खराब इंसान ही नेगेटिव बोलता है, एक अच्छा इंसान भी नेगेटिव बोल सकता है अगर उसको लालच हो, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो और उसको लग रहा है कि बुरे वाले तो अच्छे हैं तो मैं भी बुरा क्यों नहीं बनूंगा। There are many reasons, many people, they are sowing negative and it has been seen। हो सकता है वो गुस्से के माइंडसेट से स्टार्ट किए, लेकिन उसका जो रिजल्ट हुआ वो भी नेगेटिव ही हुआ। So guys, this is the first truth. If you sow negative, you will reap negative. Guys, is there any query or any question you have? Otherwise, we'll go to the next truth. यस सर। Okay, let's go to the next truth. The next truth is positive. Positive. And that we all know what is positive. Positive means if we sow positive, we will reap positive. I don't know इस मॉड्यूल के बाद आप सोइंग एंड रीपिंग को कैसे नजर से देखोगे, बट जिस दिन मुझे ये सब पता चला, मैंने पूरे दिमाग को पूरा कंडीशन कर दिया, बॉस अगर मैं नेगेटिव करूंगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, जब मैं पॉजिटिव करूंगा तो मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि मैं नेगेटिव नहीं करता हूं। मैं नेगेटिव कभी कभी शायद कंट्रोल नहीं होता, मैं नेगेटिव शायद कर देता हूं और उसका रिजल्ट मुझे मिलता भी है एज अ नेगेटिव रिजल्ट, लेकिन मुझे पता है कि वो रिजल्ट क्यों मिला मुझे, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। उस समय जब मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, आई ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ,
and I try to tell myself that I'll put positive again. So what is law of sowing and reaping? Number 2 truth, that if we sow positive seed, positive will happen. You know, एक example मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे. Do you know any good motivational speaker you have come across? Yeah. Sandeep Maheshwari. Yes. Yes. Is there anyone else? And Guru Das, Gaur Gopal Das. Guru Gopal Das. I also follow. There are many. There are international. There are Tony Robbins. You know, there are many. You know, Louis Hay. There are many motivational speakers. You know, when they started their journey, what they did, they started their journey. They started working, and they never quit. They never quit. बहुत समय क्या होता है, you know, if you ask me, YouTube में मैंने वीडियो, अभी तो YouTube में वीडियोस डालने का एक चलन आ गया है, मतलब एक वेज आ गया है, सब लोग YouTube, you know, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. I started, if you ask me, I started in the year of almost 2014 or 15. तब इतना क्रेज YouTube अपलोडिंग का नहीं था. तब से for 2 years I started uploading, you know, बहुत एकदम मेहनत से अपलोड करता था. फिर एक टाइम आया, मुझे लगा कि यार इतने अच्छे लोग हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, मेरा वीडियोस कौन देखेगा. 2017 तक मैंने अपने वीडियोस काफी रेगुलर वाइज में अपलोड करना स्टार्ट किया, और उसके बाद देखा कि उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया. I was sowing positive, and when I was not getting it, I quit. और यही होता है बहुत लोगों के साथ. वो लोग काम करते रहते हैं, जब उनको नहीं मिलता है वो अपना ट्रैक चेंज कर देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. वो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी. वो आज छोड़ना नहीं चाहिए था आपको. मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था. ऑल्दो मैंने 2 महीने पहले से आई हैव अगेन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और इस बार मैं और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा जोश के साथ और पॉजिटिव बोने पे अभी मुझे बस नजर है, उसमें कितना लाइक पड़ रहा है, कितना फॉरवर्ड हो रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं. आई हैव टू ओनली सो, एंड वही मेरे हाथ में है. राइट? कौन देखेगा नहीं देखेगा, अब सुनीता जी देखेंगी नहीं देखेंगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो सुनीता जी के हाथ में है. राइट? यस सर. ओके गाइस, एक और वीडियो देखते हैं, अच्छे से देखिएगा, जहां पे सेम इंसान, यू नो, वी नो अबाउट दशरथ माझी, उन्होंने जब अपने एटीट्यूड को पॉजिटिवली कन्वर्ट किया, यू नो, आप सुने होंगे वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसके वो जब बाद में रियलाइज किया कि आप ये गुस्सा उसके लिए नेगेटिव जा रहा है, उसको पॉजिटिवली अपना काम करना है, एक पर्पस के साथ उसको माउंटेन को तोड़ना है. पर्पस क्या है? इतने लोग इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरे गांव से इस गांव में पानी ला रहे हैं, अगर एक रास्ता बन जाता है तो दूसरों के लिए ये काफी बेटर एंड इजी प्रोसेस होगा. तो अब वो पर्पसफुली, यू नो, अभी वो तोड़ रहा है. सो ये डिफरेंस होता है, यू नो, एक गुस्से के साथ तोड़ना और एक पर्पसफुली तोड़ना. और जब इंसान पर्पसफुली तोड़ता है ना, तब उसको उस चीज के साथ खुशी होती है, उस चीज के साथ एक प्रेम होता है. अब आप देखोगे उसको प्रेम है, अभी वो नफरत नहीं है उसको. ले फिर आ गए सब राज्य खुशे. हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे. बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो. तैयार है? अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है. आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं. और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है.
पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? तो उन्होंने बोला ये प्रेम है, ये ताकत नहीं है। ये प्रेम है। दिस इज कॉल्ड लव टुवर्ड्स योर वर्क। आप एक बात बोला, ऐसा मुझे तो लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज पे काम करो और आपको वो फल ना मिले, क्योंकि आप उस काम को करते वक्त जो हैप्पीनेस आपको मिल रहा है वो क्या है फिर? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ बनना है, मुझे इस गार्गेंचुअन एडवांटेज को अपने लाइफ में हासिल करना है, तो मैं तो अभी इस जर्नी में हूं। तो इसका मतलब है कि आप अगर खुश नहीं है, आप अभी जो जर्नी में हो, तो व्हाई यू आर नॉट हैप्पी? Why don't you consider कि this is also a success, that I am learning something which is important for my life. Success is not always the outcome. Success is basically about the journey. इस journey में आप कितने खुश हुए, that is important. Every day आप यहाँ पे आ रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो, उस पे कुछ तो changes आपका हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत समय बोलते हैं बहुत स्टूडेंट, सर आपका ये जानने के बाद मेरे लाइफ में ये चेंज आया, सर आपने ये जो मेरा क्लास लिया ना, मेरे को ये चेंज आया। तो ये चेंज जो आया, क्या ये सक्सेस नहीं है? यस सर। आप किस सक्सेस को टारगेट कर रहे हो भाई? आप जो सक्सेस को टारगेट कर रहे हो उसके लिए ये छोटा छोटा सक्सेस इंपॉर्टेंट है। यस सर, छोटे छोटे। अल्टीमेटली क्या करना है? एक चीज बहुत अच्छा मैंने सुना था कहीं पे कि एक होता है वॉर, एक होता है युद्ध। एक जैसा महाभारत एक युद्ध, एक वॉर था। बात है कि एक वॉर है, वॉर में बहुत छोटे छोटे बैटल्स हैं। जरूरी नहीं कि हम सारे बैटल जीतेंगे, हो सकता है कुछ बैटल हम हारेंगे भी, बट अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली आई विन और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay, so guys, this is the number 2nd truth, and that is called positive. If we sow positive, then positive will happen in our life. Okay, let's go ahead. Number 3, more. This truth is more. What is more? Anybody, can you guess, my dear friend, what is more here? क्या बोलना चाह रहा है? What is more related to sowing and reaping? उसको ज्यादा केयर करना, मतलब जिस चीज पे आप काम कर रहे हो तो ज्यादा इफेक्ट करना उस पे, वर्क करना उस पे। Anyone? More effort. Okay. More perfection. Okay, no, this is something different. It is said, this truth said, when you are sowing negative or you are sowing positive, you will be getting more than what you expect. आप जो सोच के सोइंग या रीपिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको जितना एक्सपेक्टेशन है कि मिलेगा, उससे आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब नेगेटिव भी ज्यादा मिलेगा। मतलब आप अगर कोई चीज नेगेटिव कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, आपको जो मिलना है उससे कई ज्यादा खराब होगा आपके साथ। और सेम टू सेम अगर आप कुछ पॉजिटिव सोइंग कर रहे हो, वहां पे भी आप जो सोच रहे हो मिलेगा, उससे बेसिकली वो तो मिलेगा, उसके साथ साथ और ज्यादा मिलेगा आपको। इन शॉर्ट, अगेन मैं आऊंगा दशरथ मांझी जी के बात में। वो जब पॉजिटिव बोना स्टार्ट किए तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हुआ और उनका रास्ता तैयार हो गया। ये तो एक पॉजिटिव हुआ, लेकिन डोंट यू थिंक कि और भी पॉजिटिव चीजें हुई? बहुत लोगों ने उनको बहुत लोगों के दिमाग में वो आए, बहुत लोग उनके बारे में जान पाए, वो एक हस्ती बने, बहुत लोगों ने उनको फॉलो किया, बहुत लोग इवन पेपर टीवीज में भी उनका नाम आया। लेकिन ये सब दशरथ मांझी ने नहीं सोचा था। उन्होंने सिंपल सोचा था कि आई विल जस्ट ब्रेक द माउंटेन एंड मेक द रोड। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज बियॉन्ड इवन हिज beyond his expectation.
इसका मतलब है जब हम लोग भी अपने लाइफ में कुछ करेंगे, हो सकता है हमको नहीं मिल रहा है, बट अगर हम करते जाएंगे, एक दिन बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के मिलेगा। ये एक मतलब ये कहावत है, लेकिन इस चीज को मैं मानता हूँ और मुझे इसका इफेक्ट दिखा भी है अपने लाइफ में। हो सकता है कभी कभी होता है नहीं मिलता है। अगर आपको नहीं मिला ना तो सिंपली आप जान लो एक ही चीज, आपका समय अभी तक आया नहीं है। एक बार आना स्टार्ट हो जाएगा ना, देन यू विल बी गेटिंग बियॉन्ड व्हाट यू एक्सपेक्ट। डेफिनेटली यस सर। ओके, चलिए एक वीडियो देखते हैं फिर से। आप तो कमाल कर दिए दशरथ मांझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। मेरे को भी यही बोलना है कि लक के भरोसे मत बैठिए, क्या पता लक हमारे भरोसे बैठा हो। भगवान इज व्हाट इज अ सुपर पावर। मे बी भगवान, लक, अल्लाह, मे बी दे आर देयर, बट उन्हीं के हाथ में तो है ये लक, हमारे हाथ में थोड़ी ना है। सो वी हैव टू डू आवर लेवल बेस्ट। आज उनको सुपरमैन बोला जा रहा है, आज उनको मिस्टर इंडिया बोला जा रहा है, आज हजारों लोग उनके पीछे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी ऐसा भी सोचा था कि ऐसा भी होगा। लेकिन उनको बहुत ज्यादा मिला, उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिला। वो जिस लेवल में थे उस लेवल से थोड़ा ऊपर आए। ही वॉज इन लाइमलाइट। इट मीन्स व्हेन वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट, जब हम लोग अपने रास्ते में चलेंगे एंड वी विल पुट आवर पॉजिटिव थिंग, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। आज देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला है। इमेजिन, आप उसके साथ हो या आप उसके अगेंस्ट में हो, ये अलग बात है, लेकिन ये बात से तो आप मना नहीं कर सकते कि उनको वो जो बने वो अनएक्सपेक्टेड है। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। वो अच्छे हैं बुरे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, लेकिन आज वो पोजीशन में है अनएक्सपेक्टेड। उनको जो मिला है वो बियॉन्ड मिला है। शायद उन्होंने सोचा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता चला कि उनको यूएस जाने के समय 3 बार रिजेक्शन मिला। उनके वीजा को अप्रूव नहीं किया गया। अरे अप्रूवल छोड़ो, उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया, वो कभी यूएस नहीं जा पाएंगे, ऐसा सिचुएशन था। अभी सब बुला रहे हैं। अभी तो अलग बात है। माय डियर फ्रेंड, वो कभी ये सब लेके कभी सोचे भी नहीं। ये सब कहानी हमको कब पता चला? जब वो पीएम हुए, उनके बाद ये सब बात हमें अभी सबको पता है। तो वही बात है गाइस, हमारे लाइफ में जब सक्सेस नहीं आता है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आने दो ना, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, यही प्रॉब्लम सब को आप एग्जाम्पल बनाओगे लोगों के लिए, और बाहर के लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे कि अगर इनके लाइफ में हो सकता है तो मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो सकता। सो कहीं पे आप चाहे सोनारपुर में रहते हो या पार्क सर्कस में रहते हो या बेहाला में रहते हो या कौशबा में या हालतू में, ये प्लेस डिसाइड नहीं करता कि आप कहाँ पे पहुंचोगे। आपके अंदर में क्या है वो डिसाइड करता है कि आप आगे जाओगे कि नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट। आई एम गिविंग माई बेस्ट, ये मेरे हाथ में है। आई डोंट नो कि मैं किसको इंस्पायर कर सकता हूं। अभी आप लोग यहाँ पे 7 लोग मुझे देख रहे हो। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आपको जो चाहिए मैं उससे ज्यादा आपको दूं। मेरे हाथ में यही है देना। आपको मिलेगा कि नहीं, आप मुझे पसंद करोगे कि नहीं, ये सब मेरे हाथ में कभी था ही नहीं। मेरे हाथ में क्या है? आई विल टेक दिस क्लास and I will give my best effort while I'll be delivering my class. और वो बस पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, I will give you the practical example of life जहाँ पे लोगों ने बोया और लोगों ने पाया। This is the fact. आप तो कमाल कर दिए। Okay guys, number 4 truth. Number 4 truth is many ways. Many ways. There are many ways you can sow your seed. बहुत लोग बोलते हैं कि
मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आप एक ही रास्ते पे ट्राई कर रहे हो, आप दूसरे बहुत सारे वेज को ट्राई नहीं कर रहे हो। इट हैपेंड, इट मे हैपन। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, मैं आई एम टेकिंग द क्लासेस, अलग से आई एम ऑल्सो डूइंग माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो आई एम डूइंग सम प्रोमोशनल इवेंट जहां पे मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं कि हाउ यू कैन बिकम अ लाइफ कोच, आप कैसे लाइफ कोच बन सकते हो। सो एट अ टाइम आई एम ऑल्सो डूइंग मेनी थिंग्स टू रीच अ गोल, whatever you want to be। आपने एक अपना लेवल सोचा है कि मुझे कुछ अचीव करना है अपने अपने लाइफ में, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप एक ही रास्ते पे जा रहे हो। थिंक अबाउट दैट, इसीलिए आपको शायद नहीं मिल रहा है। यू नो, व्हेन यू सो समथिंग पॉजिटिव, देयर आर मेनी वेज। आप सोचो वो कौन कौन से वेज है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। You know what I have not tried in my life। अगर आप मेरे को अगर बहुत पहले से अगर फॉलो कभी किए हो या मेरे YouTube चैनल को कभी देखे हो, what I have not done, I've started with you know spoken English class, then I've started with personality development class, फिर मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, फिर मैंने YouTube चैनल में कुछ शोज स्टार्ट किए जैसे Try Me God Show, then I started with brain tattoos। बहुत लोगों को नहीं पता क्योंकि I have never told, but I am putting my effort in different ways। अब कौन एफर्ट कामयाब होगा वो बात की बात है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सो दैट मेरे पास हजारों वेज हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, यू शुड ऑल्सो हैव मेनी वेज। सिर्फ एक ही वेज से आगे जाओगे तो नहीं होगा, यू हैव टू गो फॉर मेनी वेज। और एक क्रिएटिव इंसान ही मेनी वेज को मतलब सोच सकता है कि और क्या क्या वेज हो सकता है। You know, like if I asked you guys, like, you know, okay, Manushi, so what is your aim in life? What is your aim in life? What are you really doing in these days? আমি এজ এ ফিল্ড অফিসার কাজ করছি, তো আমার এম আছে যে আই ওয়ার্ক এজ এ কোঅর্ডিনেটর। বাট আজকে সত্যি আজকে এই যে টপিকটা হচ্ছে, এই টপিকটা আমার সাথে খুব রিলেটেড, বিকজ আমি যেখান if you are excited about, you know, whatever you want to be, if you are excited about your work, then you know same thing will happen। You know, Manushi said very important thing, जब हम लोग अपने सक्सेस के जर्नी में होते हैं ना, तो बहुत लोग ना हमको फॉलो करते हैं। सोचो, मुझे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है और मैं डिमोटिवेटेड होके बैठ गया, तो उनका क्या होगा जो मुझे फॉलो कर रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। जिस दिन कोई इंसान मेरे को फॉलो कर रहा है, आप उसी दिन से सक्सेसफुल बन गए, और क्या चाहिए। आप जो सक्सेस चाह रहे हो वो तो मटीरियलिस्टिक है, मैं जो सक्सेस की बात कर रहा हूं वो दैट इज बेसिकली द रियल सक्सेस। जब लोग आपके जैसा बनना चाहे, यू नो, दैट इज द रियल सक्सेस। लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं हाथ में नहीं आया ना तो हम उसको गिन भी नहीं सकते, तो सक्सेस नहीं है। आप देखिएगा बहुत लोग सक्सेस एंड मनी दोनों को साइड में रख के चलते हैं। यू नो, देयर आर मेनी पीपल हु आर सक्सेसफुल मे नॉट बी द रिचेस्ट पर्सन इन अर्थ। यू नो, बहुत लोग हैं जो उतने रिच नहीं है। आज रतन टाटा, ही इज नॉट दैट रिच लाइक मुकेश अंबानी, बट देयर आर डिफरेंसेस। उनके अपने पर्सनल प्रोटोकॉल में डिफरेंसेस हैं। रतन टाटा जी जो करते हैं वो और अंबानी जी जो करते हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। रतन टाटा जी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा यू नो ह्यूमन के साथ कनेक्टेड है। उनको भी पैसा बनाना है, लेकिन they believe in, you know, people, they believe in, you know, the values। और ये बहुत important है। So guys, this is very important that what is success, ये भी बहुत important बात है। You know, जब आपको लगेगा कि लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता हूँ और बहुत लोगों को मैंने मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया कि वो भी आगे बढ़े, आई थिंक दिस इज समथिंग यार। आप लोगों के लाइफ में डिफरेंस ला रहे हो, and that is very important, and this is a part of success only when you motivate someone to go ahead। Okay, let's go ahead guys। there are many ways। तो अगर आपको लग रहा है कि you are putting your effort और आपको उसका फल नहीं मिल रहा है,
तो थोड़े वेज को चेंज करो, थोड़ा क्रिएटिवली सोचो कि और भी मैं क्या कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स मेरे रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं. सो थिंक अबाउट दोज वेज जहां से आई कैन रीच माई गोल. That is very important. Okay, let's go to the next one. The fifth truth is anyone can. Anyone can. I really want to know what you understand by anyone can. Sharu, what do you think? Anyone can. What do you mean to what this truth wants to say? मतलब anyone can do like this thing. Okay. Okay, yeah, Shoma. Anyone can. What do you mean by that? So anyone can that particular work if they have guts. Okay. Okay. Yeah, Devashish, what do you think? Anyone can. What this? I think that it denotes that everybody has potentiality to reach the goal, but and everybody is running after that. But anyone can do it. It's not that the person you are having that much qualification. You are having that is your background. That's one. No, that is not the criteria. If you concentrate on your deeds, if you work hard, anyone can achieve that goal. Absolutely right. Devashish has just said the truth. Anybody can means कोई भी सोइंग करेगा उसको मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लोग सो करेंगे तो उनको रीपिंग होगा. कोई भी हो सकता है वो. अरे यार, जहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, a tea seller has become the prime minister. You see, this is called miracle. It shows that anyone can. मतलब अगर आप भी चाहोगे तो शायद आप भी बन सकते हो if you really work on it. कुछ भी हो सकता है. बहुत लोग बोलते हैं अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता ना तो कुछ कर बैठता, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए. So this is very important that anyone can. अगर आप चाहोगे तो आप करोगे. कोई biasness नहीं है कि only few people of society can get the results. Okay, let's go to the next truth. You could lose. You could lose. सुनीता जी, इसका मतलब क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सुनीता जी. You could lose. खुद को आप मतलब किसी भी चीज में आप लूज नहीं कर सकते हो. जिसे आपको सक्सेस या फिर कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आप पीछे मत हटो, अपने आप को गिव अप मत करो. Okay, Zeba ji, do you want to say something on this? You could lose. Yes sir, अपने आप को पीछे मत करो, जैसा वो बोल रही है वो सही है. Okay. Okay, fine. Let's talk about this. You could lose. What does it mean? It means आप बोगे तो आपको मिलेगा. आप बोगे तो आप जितना बो रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा. आप पॉजिटिव बो रहे हो ना, तो आप जितना सोच रहे हो कि आपको मिलेगा, आपको उससे कई ज्यादा मिलेगा और बहुत ज्यादा खुश होंगे आप. आपको बहुत ज्यादा मिलेगा. लेकिन हो सकता है इस बोने में और पाने में कुछ ऐसा समय आए जब आपको थोड़ा हारना भी पड़ेगा. मतलब ऐसे समय भी आएंगे जब आपको नहीं मिलेंगे. You could lose. This is a part and parcel of life. बहुत लोग हैं ना जो हारने को एक्सेप्ट नहीं करते. उनको लगता है कि हार गए मतलब डूब गए, सब खत्म. They don't believe कि you are never a loser until you quit. Never give up. Of course, never give up. लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप, हो सकता है आप नहीं चाहते हो हारना, लेकिन हारना आपको पड़ेगा. चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो, ऐसा टाइम आएगा जब आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो. ये सच्चाई को हमेशा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा.
बहुत लोग ना ये हारने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यही मैं बोल रहा था। तो जब भी हारते हैं तो खुद को संभाल नहीं पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दैट you could lose. You could lose. So guys, we have already completed our 6th truth and now we are left with only one. But before that, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने एक मूवी निकली थी हॉलीवुड में, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आई डोंट नो आप में से किसने किसने ये मूवीज देखा है। ये विल स्मिथ का मूवी है, अगर आप विल स्मिथ को जानते होगे। विल स्मिथ एक ब्रोकर था और वो बहुत ट्राई किया, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। ही वाज ऑलवेज डूइंग गुड। वो हमेशा अच्छी चीजें बोने का कोशिश कर रहा था अपनी फैमिली को। उसके फैमिली में उसकी वाइफ थी, उसका एक बेटा था, उसकी एक नौकरी थी, वो एक सेल्समैन था और वो एक रेंट में रहता था। he was always trying to do good, बहुत अच्छा कोशिश करता था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसे आए कि उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। कभी कभी वाइफ भी साथ नहीं देती है। वो अपने बच्चे को लेके एकदम अलग था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए। उनके जो ओनर थे, हाउस के ओनर, वो रेंट मांग रहे थे, लेकिन रेंट के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको घर छोड़ना पड़ा था। So it was a very good movie. You can see this. The movie name is The Pursuit of Happiness. So एक बार उस मूवी का एक छोटा सा क्लिपिंग देखेंगे जब उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी। Anymore, I'm just not happy. Then go get happy, Linda. Just go get happy. Guys, in this case, as I said earlier, that nobody was believing. He was putting his effort, but he was only failing and failing. So his times were really not going good. He was not expecting these kind of days. So ऐसा होता है कभी कभी हमारी लाइफ में भी। ये कोरोना के आने के बाद बहुत लोगों के लाइफ में अब चेंजेस आएगा। कुछ लोग नेगेटिव, कुछ लोग के पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये कोरोना इफेक्टेड जो लोग होंगे उनको बहुत सारा लॉसेस देखना पड़ेगा अभी। सो ये होता है कभी कभी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अभी। मैंने देखा है कि जो लोग पहले दूसरे शॉप चलाते थे, आज वो कोरोना के चलते अभी वो लोग चावल बेच रहे हैं, वेजिटेबल बेच रहे हैं। बात है कि ये प्रॉब्लम के साथ साथ हमें भी खुद को चेंज होना पड़ेगा। अगर हम लोग रोते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। सो दैट इज द रीजन व्हेन यू सो योर सीड समटाइम्स यू कुड लूज ऑल्सो। कभी कभी हमें हारना भी पड़ता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रुथ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, एंड विच इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। इट्स कॉल्ड if you don't sow, so Manashi, if you don't sow, then what? If you don't sow, then what? If you don't sow, if you don't put your effort, what will happen? Yeah, Sharup, if you don't sow, then nothing will happen. Zero. I had nothing. Yeah, sir. Then what you're expecting, and what we have, you feel that I could get this, you will not have that. You will not reap. You will not have. You will not reap. If you don't sow positive, you will not reap the positive. अगर आप कुछ करोगे ही नहीं सर, तो कुछ अचीव कैसे कर पाओगे? कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा फिर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं लेजी, जो लोग करना ही बंद कर देते हैं। बोलते हैं यार मैंने तो अभी तक किया तो हुआ नहीं, चलो देखते हैं नहीं करके भी कुछ मिलता है कि नहीं। तो नहीं करके भी कुछ नहीं मिलने वाला। If you don't sow, then you will not reap. Very simple. Yes, sir. If you don't sow, you will not reap. So guys, greatest secret जो आज हमने सीखा कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, and that is
You have to get your sowing going. You have to get your sowing going. You know, this is a very important line. You have to get your sowing going. That's the Whatever. punchline. Yeah, Devashish? That's a punchline. Punchline. That's the punchline, and that's the real thing and the most practical thing. And क्योंकि ना आप जब तक करते रहोगे ना, आपके पास एक होप रहेगा, और जिस वक्त आप करना बंद कर दोगे ना, तो वो भी होप नहीं रहेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, पहले तो एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं. द लॉ ऑफ नेगेटिव. आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, अगर किसी भी फील्ड में आप कुछ नेगेटिव कर रहे हो, तो उसका नेगेटिव आपको मिलेगा इफेक्ट. अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो, तो उसका पॉजिटिव भी जरूर मिलेगा. थर्ड है कि ज्यादा मिलेगा, मोर. वो नेगेटिव होगा भी तो ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव होगा भी तो ज्यादा मिलेगा. What was the fourth one? There are many ways. There are many ways. अगर आप if you really want to go ahead, there are many ways. हो सकता है आप एक ही ways में try कर रहे हो. सोचो क्या हो सकता है. You know, we are also thinking कि अभी अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है, तो और क्या क्या ways हैं, so that हमें और ज्यादा students मिलेंगे. See, teaching is important. I know that, but हमें तो ये भी देखना है ना कि revenue भी तो आना चाहिए. अब revenue नहीं आएगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? So we are also thinking कि कितने ways हैं. ये बहुत important है. What was the next? Anyone can. Anyone can. मतलब कोई biasness नहीं है कि मैंने जैसे कहा कि सोनारपुर हो या कस्बा हो या हालतू हो या बेहाला हो या छतरपुर हो, कोई भी हो, किसी भी लेवल में हो, कोई biasness नहीं है. जो बोएगा उसको ही मिलेगा. Yes, and what was the next? You could lose. You could lose. हाँ, बस ये सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा कि आप इतने बोने के बावजूद ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको हारना भी पड़ेगा. उस हार को एक्सेप्ट जो कर सकता है ना, वही आगे बढ़ सकता है. And the number 7 is if you don't sow, you don't reap. मतलब कोई चांस ही नहीं है. अगर आप नहीं बोओगे तो नहीं पाओगे. एटलीस्ट बोने से एक होप तो मिलता है कि भाई कुछ चांस तो है. फिर तो ये चांस को अपने लाइफ से नहीं आने दो, क्योंकि अगर आप बोओगे तो आप जरूर पाओगे. लुक एट द लास्ट वीडियो ऑफ द नाइट. Tomorrow is going to be your first day. If you'd like to work here as a broker, would you like that, Chris? Yes, sir. Period. I don't know whether you could really hear those conversation between the father and son. The father said, you know, कभी भी अगर कोई आपको बोले तुम नहीं कर सकते हो, तो उनकी मत सुनना, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो. You know, you should never listen that. अगर you have a dream, you have to protect it. Yes. You gotta protect it. If you have a dream, then you have to protect it. अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो उसको प्रोटेक्ट करो. प्रोटेक्ट कैसे करोगे? बाय सोइंग एवरी डे समथिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग. हमेशा उस चीज में, जो चीज आपका ड्रीम है ना, उसको हमेशा उस पे एक्शन करते रहो. बिकॉज एक्शन इज द ओनली वे बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट इट. जिस वक्त आप सोचोगे कि आई एम गॉन, मेरे से नहीं होगा, आप अपने हाथ को प्रोटेक्शन शील्ड से निकालते हो, और वो जो ड्रीम आपका होता है वो कोई और लेके चला जाता है. So it's very important, my dear friend, that we should be protecting our dreams. Whatever we dream, it will happen. But we have to
believe these 7 truths of sowing and reaping, because these 7 truths of sowing and reaping is everything in life. You know, if you sow, then you will reap. You will reap more, and you could be anyone. You will reap. Yes, but you have to accept that sometimes you have to lose also. So considering losing, and you know, even if you do something, you know, there are many ways. So basically these 7 truths are saying that whatever we want in our life, if we keep on work on it, we will definitely get it.